ایک جگہ ہے، ایک واقعہ ہے، اس کے بعد دوسرا ایک اور ریفرنس، کوئی بھی بھائی یا بہن دوسرا ریفرنس بھی نکال کے رکھیں. قضات کی کتاب، تسی دوسرا کر لو، قضات کی کتاب 9واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے 15ویں آیت تک. اور پہلا ریفرنس تھا خروج کی کتاب 17واں باب یعنی 17 اور ورس 8 سے 13 تک، یعنی 8ویں آیت سے 13 آیت تک آپ پڑھیں. خدا کے کلام میں یوں مرحوم ہے. ہاں جی. تب عمالیکی آ کر رفدیم میں بنی اسرائیل سے لڑنے لگے اور موسیٰ نے یشوع سے کہا. ہاں جی، موسیٰ نے یشوع سے کہا. ایک یہاں پر ایک واقعہ ہے اور کچھ ہوا ہے یہاں پر کہ کچھ لوگ ہیں عمالیکی اور وہ کیا کرنے لگے؟ بنی اسرائیل سے لڑنے لگے. اور جب یہ سارا واقعہ ہونے لگا تو موسیٰ نے کس سے کہا؟ یشوع سے. یشوع کون ہے؟ موسیٰ کے بالکل نزدیک ہے. ہلیلویا. یشوع سے کہا، کیا کہا؟ کہ ہماری طرف کے کچھ آدمی چن کر. ہاں جی، کچھ کر تو. یشوع کو کچھ کہا گیا، کمانڈ دی گئی ہے، کہا گیا کہ ہماری طرف سے کچھ آدمی چن کر لے جا. ہاں جی، ان کو لے جا. ہاں جی، اور عمالیکیوں سے لڑ. اور عمالیکیوں سے جو ہمارے ساتھ لڑنے آئے ہیں یا لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ تو جا کر جنگ کر یا لڑ. جی آگے. اور میں کل خدا کی لاٹھی. اور کہتا ہے، میں وہ اپنی بات بتاتا ہے، کہتا میں کیا کروں گا؟ میں کل خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا. ہاں جی، تو وہاں پر جا کر عمالیکیوں سے لڑنا، اور میں یہ کروں گا کہ میں خداوند کی لاٹھی لے کر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا. تو لڑنا تے میں کھڑوتا رہوں گا. جی آگے. سو موسیٰ کے حکم کے مطابق، سو موسیٰ کی کمانڈ کے مطابق، موسیٰ کے حکم کے مطابق یشوع عمالیکیوں سے لڑنے لگا. ہاں جی، یشوع نے وہی کام کیا جو موسیٰ نے کہا تھا. یشوع عمالیکیوں سے لڑنے لگا. اور موسیٰ اور ہارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے. ہاں جی، یہ 3 شخص موسیٰ، ہارون اور ہور. کتنے لوگ ہیں؟ 3 لوگ ہیں. یہ تینوں لوگ کہاں پر چڑھ گئے؟ پہاڑ کی چوٹی پر. اور یشوع اور کچھ آدمی جو اس نے چنے تھے وہ لڑنے کے لیے عمالیکیوں کے سامنے چلے گئے یا میدان جنگ میں چلے گئے. ہلیلویا. کتنی ٹیمیں بن گئی ہیں؟ 2. ایک یشوع لیڈ کر رہا ہے اور ایک موسیٰ لیڈ کر رہا ہے. موسیٰ کے ساتھ 2 بندے ہیں، یعنی موسیٰ کو ملا کے 3 لوگوں کی ٹیم، اور یشوع کے ساتھ چند آدمی ہیں، بتایا نہیں گا کتنے. ہلیلویا. آگے. اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا. ہاں جی، اور موسیٰ جب تک اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے. ہاں جی، یشوع اور اس کی ٹیم جو میدان جنگ کے اندر لڑ رہے تھے، ان کی فتح یابی کا راز یا ان کی فتح یابی کس میں تھی؟ اس ٹیم میں جو پیچھے بیٹھی ہے پہاڑ پر. آمین آمین. ہلیلویا. پہاڑ پر موسیٰ، ہارون اور ہور. ہلیلویا. موسیٰ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ہارون اور ہور اس کے دائیں بائیں ہیں. اور لکھا ہے کہ جب تک اس کے ہاتھ پڑے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا. 11ویں آیت پڑھیں. اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا. اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا، بنی اسرائیل غالب رہتے تھے. ہاں جی، بنی اسرائیل کیا رہتے تھے؟ غالب رہتے تھے. آگے. اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا، تب عمالیکی غالب ہوتے. تب عمالیکی غالب ہوتے تھے. لڑ کون رہا ہے؟ موسیٰ، یشوع. لیکن ان کی لڑائی کی جیت اور ہار، ان کا غالب آنا یا ان کا ہار جانا کہاں سے سپورٹ ان کو مل رہی ہے؟ پہاڑ سے، جہاں پر موسیٰ ہے، ہارون ہے اور ہور ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. چیک یور پوزیشن اینڈ ٹیک یور
गेट योर पोजीशन। हालेलुया। इनकी पोजीशन सबकी चेक करें। यही काम अगर यीशुआ कहता कि मूसा नहीं, मैं नहीं लड़ना, मैं उत्थे पवांगा ते तू जाके लड़, तो क्या सही था? नो, क्योंकि लीडर कौन है? मूसा। मूसा ने ये कमांड किया है, मूसा ने ये हुक्म दिया है कि यीशुआ तू अपने साथ कुछ लोग ले जा और जाकर अमालेकियों से लड़, और यीशुआ ने वैसे ही किया। हालेलुया। वो जाकर उसने लड़ना शुरू कर दिया, और मूसा को जो काम था वो मूसा ने करना शुरू कर दिया। आगे क्या हुआ बहन? और जब मूसा के हाथ भर गए, हाँ जी, एक वक्त आया कि मूसा के हाथ थक गए, भर गए, तो उन्होंने एक पत्थर लेकर, हाँ जी, उन्होंने, किन्होंने? हूर और हूर और सब एक तरफ के हूर और हारून ने काम किया है। उन्होंने क्या किया? पत्थर लेकर, हाँ जी आगे, मूसा के नीचे रख दिया। हाँ जी, मूसा को पत्थर पर बिठा दिया जी, और वो उस पर बैठ गया, और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक इधर से दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे, संभाले रहे। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब है मूसा अकेला भी कुछ नहीं, भले कितना ही खुदा के साथ बातें करता है जाकर, है तो बदन, थक वो भी सकता है। जब उसके हाथ फट गए तो दो शख्सों की जरूरत थी, और उन्होंने भी एक प्लानिंग के तहत काम किया। उन्होंने एक पत्थर रखा और पत्थर पर उसको बिठा दिया, और खुद उसके इधर वो खड़ा हो गया, एक उधर खड़ा हो गया। हालेलुया। आगे, तब उसके हाथ आफताब के गरूब होने तक, कब उसके हाथ? जब इन्होंने उसको सहारा दिया, जब इन्होंने एक प्लान किया कि मूसा अब थकता जा रहा है, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने वो काम किया और पत्थर पर उसको बिठाया और दोनों तरफ से उसके हाथों को, हालेलुया। और यीशुआ क्या कर रहा है? 13वीं आयत, तब उसके हाथ आफताब के गरूब होने तक मजबूती से उठे रहे। हाँ जी, और 13वीं आयत, और यीशुआ ने अमालीक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। लेकिन इस तलवार कैसे चल रही है? यीशुआ की तलवार स्लो हो जाती जब मूसा के हाथ नीचे हो जाते, यीशुआ की तलवार तेज हो जाती जब मूसा के हाथ ऊपर हो जाते, और मूसा के हाथ कंटिन्यू ऊपर रहे। उसके पीछे कौन है? हूर और हारून। चेक योर पोजीशन। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि खुशखबरी टीम, आप किस जगह पर हैं? क्या आप यीशुआ वाली जगह पर हैं? क्या आप यीशुआ के साथ जो चंद लोग चुने गए, क्या उनके अंदर हैं? क्या आप पहाड़ पर मूसा के साथ खड़े हैं? हालेलुया। क्या आप मूसा हैं? क्या आप हूर हैं या आप हारून हैं? कौन सी जगह पर हैं? ये सवाल है, इसको ज़हन में बिठा लें, घर जाके अभी जब मर्जी आप इसको सोचिएगा। खुशखबरी टीम में आप कहां पर हैं? और अगर आप कहीं पर भी हैं तो क्या वहां रहकर आप काम कर रहे हैं? क्या नीचे अगर यीशुआ लड़ता ही ना और वो ऊपर दुआ करते रहते तो क्या शिकस्त होती? क्या वो ऊपर दुआ ना करते और नीचे यीशुआ लड़ता रहता तो क्या उनको शिकस्त होती है मालिकियों को? ये एक टीम वर्क हमें नजर आता है, और इस टीम वर्क के अंदर काम से पहले, जंग से पहले उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, उन्होंने एक प्लान तैयार किया है कि हम करेंगे क्या। हालेलुया। क्या हमारे पास कोई प्लान है? क्या हमने डिवीजन बांटे कि हम कहां पर हैं? हालेलुया। मैं इसको फैसला नहीं करूंगा कि हमने बांटे या नहीं बांटे, यहाँ पे खुद फैसला करना। हालेलुया। हालेलुया। टेक योर पोजीशन एंड गेट योर पोजीशन। सही करना। हालेलुया। हालेलुया। एक स्ट्रेटजी, एक प्लान उन्होंने किया, और उस प्लान के मुताबिक वो मुत्तफिक होकर
जैसा मूसा ने कहा, जैसे वो एक दूसरे के साथ मुत्तफिक हुए, उन्होंने इस जंग को जीत लिया। हालेलुया। अब दूसरा रेफरेंस पढ़ेंगे, किजात की किताब 9वां बाब 7वीं आयत से 15वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके अंदर एक तमसील है, एक 9वां बाब और उसकी 7 आयत से 15 आयत तक। जी कोई भी पढ़ दे। जब योताम को उसकी खबर हुई जी तो वह जाकर कोहे गर्जीम की चोटी पर खड़ा हुआ। हाँ जी, ये पढ़िएगा आप इस बाब को या इससे पिछले वाले बाब को, तो ये आपको स्टोरी समझ आ जाएगी। मैं आपको बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। जी पढ़िए आगे। और अपनी आवाज बुलंद की। हाँ जी, ये एक बंदा है योताम, और वो अपनी आवाज बुलंद करके लोगों को कुछ कहने लगा। जी और पुकार पुकार कर हाँ जी उनसे कहने लगा, ऐ सिकम के लोगों, हाँ जी, ऐ सिकम के लोगों, मेरी सुनो ताकि खुदा तुम्हारी सुने। हाँ जी, मेरी सुनो ताकि खुदा तुम्हारी सुने। आगे। एक जमाना में दरख्त चले। हाँ जी, उसने एक स्टोरी सुनाई। उसने कहा कि एक वक्त था कि कुछ दरख्त चले, और उस दरख्तों ने क्या कहा? जी ताकि किसी को मसा करके। हाँ जी, ये दरख्त कुछ चले हैं, दरख्तों की मिसाल वो दे रहा है कि कुछ दरख्त हैं वो चले हैं। ये स्टोरी है, इसको समझिएगा गौर से कि कुछ दरख्त चले और उन दरख्तों ने कुछ फैसला किया। क्या फैसला किया? कि किसी को मसा करके। हाँ जी, वो उन्होंने ये फैसला किया कि किसी को मसा करके अपना बादशाह बनाए। हाँ जी, इनका मकसद ये है दरख्तों का कि हम किसी को अपना बादशाह बनाएं। जी आगे। तो उन्होंने जैतून के दरख्त से कहा। हाँ जी, किसके पास गए हैं ये? जैतून के दरख्त। सब कहें किसके पास गए हैं ये? जैतून के दरख्त के पास ये आम से दरख्त गए हैं। हालेलुया। जैतून के दरख्त के पास गए और उससे जाकर क्या कहते हैं? कि तू हम पर सल्तनत कर। हाँ जी, क्योंकि ये मकसद लेकर लिख रहे कहते हैं जैतून के दरख्त को जाकर कहते हैं कि तू हम पर क्या कर, तू हमारा बादशाह हो जा, हम पर सल्तनत कर। आगे। तब जैतून के दरख्त ने उनसे कहा। तब जैतून के दरख्त ने उनसे कहा, गौर तरफ बात सुनिएगा। जैतून के दरख्त से ये कहा गया है, आम दरख्तों ने ये बात उनसे कही है कि तू हम पर सल्तनत कर, लेकिन जैतून का दरख्त आगे क्या कहता है? जी क्या मैं अपनी चकनाहट को। हाँ जी, क्या कहता है? क्या मैं अपनी चकनाहट को। क्या मैं अपनी चिकनाहट को, जिसके बायस मेरे वसीला से। हाँ जी, उस चिकनाहट के बायस क्या होता है? मेरे वसीला से लोग खुदा और इंसान। हाँ, लोग क्या करते हैं? खुदा और इंसान की क्या करते हैं? ताज़ीम करते हैं। यहाँ पर जैतून के दरख्त को ये पता है कि मुझ में क्या है। उसने अपना आप मुतारिफ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा दरख्तों से, जैतून के दरख्त ने उसने कहा, मैं अपनी चिकनाहट को, जिसके बायस मेरे वसीला से लोग खुदा और इंसान की तंजीम करते हैं, तंजीम करते हैं, छोड़कर दरख्तों की हुक्मरानी करने जाओ। कहता मेरी वैल्यू तो चढ़ना कितने एक्स्ट्रा है, कितने अच्छी है, तो तुझे सिर्फ दरख्त हो, मैं जैतून का दरख्त हूं। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को चेक करें, हम तो आम हैं, हमें आम लोगों की तरह उनमें घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। अपनी वैल्यू पर नजर रखनी। कहता है जैतून का दरख्त कहता है मेरे अंदर चिकनाहट है, और उस चिकनाहट से क्या होता है? खुदा और इंसान की लोग जो है जैतून के तेल को लेकर क्या करते हैं? ताज़ीम करते हैं। ये खुदा के लिए भी इस्तेमाल होता है और इंसान भी इसको वैल्यूएबल समझते हैं। महंगा है, आपको भी पता है। हालेलुया। हाँ जी, बहुत महंगा है जैतून का तेल। आगे बढ़े। तब दरख्तों ने अंजीर के दरख्त से। हाँ जी, दरख्तों ने रुख अपना चेंज किया और दूसरे दरख्त की तरफ गए हैं। जी अंजीर के दरख्त से कहा। हाँ जी, दूसरा दरख्त कौन सा है? अंजीर का। सब कहें अंजीर का दरख्त। जी, अंजीर के दरख्त के पास गए और उससे कहा कि तू और हम पर क्या कर। हाँ जी, वही ऑफर जो जैतून को दी गई, वही ऑफर अंजीर के दरख्त को दी जा रही। जी आगे। पर अंजीर के दरख्त ने उनसे कहा। पर अंजीर के दरख्त ने भी उनको जवाब दिया, क्या मैं अपनी मिठास और अच्छे अच्छे फलों को छोड़कर। हालेलुया। कहता है क्या मैं अपनी मिठास और अच्छे अच्छे फलों को छोड़कर त्यागी हुक्मरानी करा।
अंजीर के दरख्त को भी पता है कि मेरे अंदर क्या है, या मैं क्या हूँ, या मेरी वैल्यू क्या है। हालेलुया। कहता है मेरे अंदर मिठास है और अच्छे अच्छे फल मेरे को लगते हैं। मैं छोड़ कर त्यागी गुनाही करना शुरू करना था, मेरे जो मिठास भी चल गए थे, अच्छे अच्छे फल भी। हालेलुया। आगे, तब दरख्तों ने अंगूर की बेल से कहा, तब दरख्तों ने तीसरे दरख्त की तरफ गए। वो कौन सा है? और आप सारे बाइबल पढ़ते हैं, आपको पता है जैतून जब भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बाइबल में कितनी अहमियत है। अंजीर का जब भी इस्तेमाल हुआ है तो बड़ी इसकी खास एक अहमियत है। ठीक है, फिर अंगूर का, खुदा यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त है। हाँ जी, अंगूर के दरख्त से उन्होंने कुछ कहा जी। तब दरख्तों ने अंगूर की बेल से कहा कि अंगूर की बेल से कहा कि तू आ और हम पर क्या कर, सल्तनत कर। हाँ जी, इसने क्या जवाब दिया? अंगूर की बेल ने उनसे कहा, अंगूर की बेल ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी मैं को जो खुदा और इंसान हाँ जी, जो खुदा और इंसान दोनों को क्या करती है, खुश करती है। छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी छोड़कर त्यागे तो हुक्मरान लग जा। हालेलुया। मैंने और आपने ये देखना है, अगर हम ये कहते हैं कि इंजील को फैलाना ये काम हमारा है, तो फिर हमारी वैल्यू कुछ अलग है। हालेलुया। फिर हमें ऑफर्स को देखना है कि ये ऑफर कहां से आ रही है। क्या अगर इस ऑफर को मैं हासिल कर लूंगा या अचीव कर लूंगा, देखने में तो अच्छी लग रही है। ये अंगूर का दरख्त, अंगूर की बेल एक है और दरख्त पता नहीं कितने, अंजीर का दरख्त एक है और दरख्त पता नहीं कितने जिन पे हुकूमत करनी। ऑफर तो अच्छी है, लेकिन वो कहता है ना साडा मेल जोल नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये मिसाल मैंने उठाई सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि हमने अपने आप को देखना है कि हमारे वसीला से खुदा, हमारे वसीला से, अंगूर क्या कह रहे थे, अंजीर क्या कह रहा था, जैतून क्या कह रहा है, कह रहा मेरे वसीले ना जो कुछ मेरे अंदरों निकल रहा है वो की होता है खुदा और इंसान दोनों को खुश ताज़ीम के लिए इस्तेमाल होता है। हालेलुया। और मुझ में और आप में भी इन तीनों में से कोई ना कोई क्वालिटी तो है। एक चौथा भी है, उसको भी पढ़ लें जी आगे। तब उन सब दरख्तों ने ऊंट कटारे से कहा, चल तू हम पर सल्तनत। नहीं, इसको दोबारा पढ़े, आपने सही नहीं पढ़ा। 14वीं आयत को पूरा तरह पढ़ा, पूरी तरह ठहर के। तब उन सब दरख्तों ने ऊंट कटारे से कहा, चल तू ही हम पर सल्तनत। चल तू ही सही कर। ये लफ्ज एक्स्ट्रा यहाँ पर यूज है, इसलिए मैं कहना आपसे कहा था कि थोड़ा सा आ जाएगा। दूसरे नहीं है क्या, उन्होंने कहा जो हमारे तिने से किसी काम दे रही ये नहीं साढ़े की कहते कंजे चाहे तू साढ़ा तो चल तू ही हम पर क्या कर, आखिरकार होना एक बंदे नू लगी दे। हालेलुया। अब मैंने और आपने ये देखना ये है कि हम कहाँ पर हैं। 4 जगह है ये, खुदा यीशु मसीह ने एक तमसील दी थी 4 जमीनों में, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह लग रही है मुझे। अब मैं और आप कहाँ पर हैं। मैं अपने लिए सोचूंगा, आप अपने लिए सोचना है। आए 2 मिनट के लिए सोच, आंखों को बंद करें, थोड़ा सा आंखों को बंद करें 1 सेकंड के लिए, सिर्फ कर ले बंद, अगर नहीं हो रही जबरदस्ती कर ले और सोचे थोड़ा, मैं क्या हूं। क्या मैं जैतून हूं, क्या मैं अंजीर हूं, क्या मैं अंगूर हूं। चौथी कैटेगरी में आपके लिए अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता। खुदा ना करे कि हम में से कोई चौथा कैटेगरी में आए, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। चेक योर पोजीशन, गेट योर पोजीशन। अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को चेक करें और उस जगह पर आकर काम करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। याद रहेगा 1 शमूएल 17 बाब और उसकी 11वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी एक जंग का मैदान है, बड़ा मशहूर है। कौन सा वाला?
जाति जूलियत वाला, हालेलुया। वहां पर भी जंग है और एक सूरमा आता है और ललकार कर खुदा के लोगों को चला जाता है और सब सुन रहे हैं। पढ़े इसको, पहले से हम 17 बाब और उसकी 11वीं आयत पढ़े। जब साउल और सब इस्राएलियों ने उस फलस्ती की बातें सुनी, हाँ जी, इस फलस्ती की ये बातें सब सुन रहे हैं जी। आगे, तो हरासा हुए और नहायत डर तो हरासा हुए और नहायत डर गए। सुन ये भी रहे, सुन सब रहे कि ये जाति जूलियत जो है ये खुदा के खिलाफ बातें कर रहा है, लेकिन सब सुन रहे हैं और हिरासा है और डर में है और खौफ में है। 23वीं आयत पढ़े, स्किप करते हैं जस्ट 23 वर्स 23। और वो उनसे बातें करता ही था हाँ जी, कि देखो वो पहलवान जात का फलस्ती, हाँ जी, जिसका नाम जूलियत था, जी, फलस्ती सफों में से निकला। हाँ जी, और उसने फिर वैसी ही बातें उसने फिर वैसी ही बातें कही और दाऊद ने उनको सुना। हाँ जी, यहाँ पर अब एक शख्स उस मजमे के अंदर एक शख्स ऐसा ऐड हो गया है और उसका नाम है दाऊद। पहले नहीं था ये आया अपने भाइयों से मिलने के लिए और अब ये बातें सिर्फ वो पूरे सारे लोग नहीं बल्कि इसके अंदर दाऊद भी सुन रहा है जी। पढ़िए आगे। और सब इस्राएली मर्द हाँ उस जी, शख्स को देखकर उसके सामने से भागे हाँ जी, और बहुत डर गए। और बहुत डर गए। 34वीं आयत पढ़े। तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया। हाँ जी, तब दाऊद को साउल को जवाब दिया। दाऊद जो है वो सौलबासे के बाद पहुंचाया गया और उसने जहाँ कुछ जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था। तेरा खादिम कहता है, साउल ने कहा कि तू जाति जूलियत के सामने जाने वाला है, जंग लड़ने वाला है, तो जरा तू कैसे लड़ेगा? तू तो छोटा है अभी और वो जंगी सुरमा है। हालेलुया। अब दाऊद अपने बारे में बताता है साउल को जी। बहन पढ़िएगा। और जब कभी कोई शेर या रीछ इसको थोड़ा सा दोबारा पढ़िएगा। जब दाऊद ने साउल को जवाब दिया, हाँ जी, कि तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता। हाँ जी, वो उसको वाकयात का बताता है, कहता है कि तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां क्या करता था? चराता था। हाँ जी। और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता, हाँ जी, कोई बर्रा उठा ले जाता, तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता। हाँ जी, आगे। और जब वो मुझ पर झपटता तो जी, मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता। मैं उसकी शेर की दाढ़ी पकड़कर उसे मारता। आगे। और हलाक कर देता था। आगे। तेरे खादिम ने शेर और रीछ दोनों को मारे हैं। हालेलुया। ये उसको अपने बारे में पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और वो बता रहा है साउल को। कहता है तेरे खादिम ने, जिसको तू छोटा समझ रहा है, जिसको तू समझ रहा है कि ये जाति जूलियत को मार नहीं सकता, कहता है तेरे खादिम ने दोनों को मारा है। आगे बढ़े बहन। सो ये नामख्तून फलस्ती उनमें से एक की मालिक कहता ओना विचों किसे की मानद होएगा। हालेलुया। यहाँ ते रिचवा को जोर लाना पड़ेगा ते यहाँ शेर वांगू, यहाँ ते रिचवा की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ते यहाँ रिच की दाढ़ी थी, शेर दी थी। कहता उसकी दाढ़ी से पकड़कर रीछ को मारने के लिए अलग स्ट्रेटजी बनाई उसने और शेर को मारने के लिए अलग प्लान है। हालेलुया। कहता मैंने शेर को भी मारा, मैंने रीछ को भी मारा और ये तो जाति जूलियत है, ये भी उनमें से एक ही मानद होगा, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट जाके मदारी तो फाड़ नहीं सकता। हालेलुया। तेरे वास्ते मैं दूर इंतजाम करांगा और तेरे पता ही होने की इंतजाम की। हालेलुया। मैं आपके सामने बस ये पॉइंट इसलिए रख रहा हूँ कि हर जगह पर काम करने का तरीका हमारा चेंज होना चाहिए और होता भी है। एक ही तरह का काम करके हम हर जगह पता हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। हमारा जो मेन जो अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। उसके बाद एक हम लंबा एक जुमला बोलते हैं, वो कौन सा है? आओ हम मिलकर पढ़े, पूरा पढ़े।
आओ हम सब मिलकर आओ हम सब मिलकर जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करें, उससे निजात, शिफा और बरकत। बस निजात, शिफा और बरकत। अब तीनों के लिए एक स्ट्रेटजी नहीं चलेगी भाई। इसमें से एक शेर लगा लें, एक रीछ लगा लें, एक जाति जूलियत लगा लें। हालेलुया। तो तीनों के लिए अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तीनों के लिए अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम वाकई ये जो नारा हम मार रहे हैं हम इस पे काम करें, तो फिर मुझे और आपको अपनी अपनी पोजीशन पहले तो चेक करनी पड़ेगी। हम कर क्या सकते हैं, हम हैं क्या, और जब चेक कर लें तो फिर उसी जगह पर हम खड़े होकर हमें काम करने की जरूरत है। दूसरे दायरे से जाने की जरूरत नहीं, ऐसी अपने ही दायरे से रह के काम कर सकते हैं। हालेलुया। अगर किसी बहन को दुआ की बरकत मिली है तो वो स्पेशल इस मकसद के लिए दुआ करें कि खुशखबरी टीम आगे बढ़े। हालेलुया। अगर कोई दुआ नहीं कर सकता तो वो रोजा रख ले। अगर रोजा भी नहीं रख सकता तो किसी ने डोर टू डोर जाके दासी आवे। अगर दास नहीं सकता कोशिश करें। हालेलुया। नहीं तो मैं पौलुस रसूल दी जड़ी खिदमत सी होती थी कि बहुत सारी मालदार औरतें अपने माल से उसकी क्या करती थी, यही कर लो को महीने का ₹1000 काट के दे दिया करो कि भैया इवेंजलिज्म वास्ते यूज करो। हो सकता नहीं हो सकता है। रबा तक किराया कितना है, 100 होएगा, 400 होएगा, चलो 500 होएगा, ₹1000 लोगे देख खादम हैदराबाद जाके वापस आ जाएगा ना कलाम सुना के, तो तुसी ₹1000 नहीं दे सकते वर्षन ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ दे सकते नहीं दे सकते। क्या आप एक दिन बाहर का इंतजाम नहीं कर सकते कि भाई जी इस हफ्ते ਜਿਹੜਾ ਹਫਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਟ लगेगा ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ मेरा होएगा, क्योंकि मेरे को दुआ नहीं होती, मेरे को रोजा नहीं रखा जाता, पर मैं अंजीर को फैलाना काम तो हमारा है ना। तो काम तो एक हिस्से में काम करके काम नहीं होगा। अगर हम सिर्फ दुआ करते रहेंगे सारे कहना सी दुआ ही करते हैं, बस असी मूसा वाली जगह पे खलोते हैं, पांच साहब तुसी आप पे अगे लड़ो यीशु वाली जगह, ऐसे नहीं होगा। कुछ तो हम कर सकते हैं, अब क्या आप कर सकते हैं ये आपको पता है। हालेलुया। एक रेफरेंस और पढ़ने इसको क्लोज करते हैं। ईमान की किताब 6 बाब और उसकी पहली आयत से 4 आयतें जल्दी से पढ़ें, अगले 2-4 मिनट में इसको क्लोज करना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ईमान की किताब प्लीज, अगर आप चाहते हैं कि ये काम बढ़े तो फिर हमें कुछ ना कुछ करना होगा। जी पढ़िए। उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे, हाँ जी, उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे, बड़ा मशहूर रेफरेंस है ये जी आगे, तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों, हाँ जी, कुछ लोग आए और आकर कुछ शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे। हाँ जी, यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोजाना खबरगिरी में, हाँ जी, रोजाना का जो काम होता था, जो खबरगिरी होती थी, उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती, उनकी बेवाओं के बारे में गफलत हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी काम में आगे। और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को हाँ जी, अपने पास बुलाकर कहा, हाँ जी, उन 12 जो शागिर्दों की जमात है उनको अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर, हाँ जी, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें। हाँ जी, खान पीने का इंतजाम भी हुण असीं करना शुरू कर दिए, कलाम भी असीं सुना रहे हैं, बीमारां नूं भी असीं ठीक कर रहे हैं, बीमारां वास्ते दुआ असीं कर रहे हैं, जगह जगह जाके कलाम भी असीं सुना रहे हैं, लेकिन उनका ये मतलब नहीं कि यह काम ठीक नहीं हो रहा तो जाके रोटियां भी असीं बनानी शुरू कर दी, राशन भी असीं बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है, मुनासिब नहीं है कि हम ये खिदमत छोड़कर हम ये वाली खिदमत करें, हालांकि है ये भी काम और है ये भी काम। हालेलुया। रुकना वो भी नहीं चाहिए और रुकना ये भी नहीं चाहिए। क्या मुनासिब है? आगे बढ़े। बस है भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों, उन्होंने सलाह मशवरा किया। चलो काम सही ना होता है वो तो सलाह मशवरे की जरूरत है। क्या जरूरत है? सलाह मशवरे की जरूरत है कि भाई काम सही नहीं हो रहा, कुछ करिए, हाँ कुछ करिए, इनको चेंज करिए। की सलाह? अपने में से 7 नेक नाम, कहता है अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह
और दनाई से हाँ जी, और वो शख्सों में खास एक खासियत होनी चाहिए कि वो कौन होने चाहिए? रूह और दनाई रूह और दनाई से। जी आगे, भरे हुए हों कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर इस काम पर, जिस काम में गफलत हो रही है उस पर मुकर्रर करें। लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। असी है काम नहीं छड़ना, क्योंकि साडी है ही खिदमत। असी हुण राशन वंडण नहीं जाना, असी हुण बेवा नूं नहीं गिनना कि किन्नियां नूं मिल गया, किन्नियां नूं नहीं मिलिया, ते लोकां नूं भी राजी रखना, क्योंकि लोकां दी शिकायत है वाकई बेवा वास्ते प्रॉब्लम हो रही है, उन्हां नूं सही उन्हां दी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही, ते लोकां नूं भी सही रखना है ते खुदा नाल भी सही रहना है। हुण इहदा हल ना कढिया कि उन्हां कहा 7 लोग होर चुन लो, उन्हां नूं मुकर्रर कर दो। ये 7 लोग भी नॉर्मल नहीं, बल्कि अक्ल और रूह और तनाइश, और इन्हीं में से जबरदस्त सूरमा स्टीफनस इन्हीं में से था। और लिखा है कि वो कुव्वत और फजल से भरा हुआ बड़े बड़े अजीब काम करता, मौजज़ात करता। हालेलुया। आगे जल्दी से, ये बात सारी जमात को पसंद आई। हाँ जी, ये बात सारी जमात को क्या हुई? पसंद आई। उन्हें क्या है, मसला ठीक है, सही काम हालेलुया निकल आएगा। आगे, बस उन्होंने स्टिफनस नाम एक शख्स को, हाँ जी, थोड़ा सा आगे नामों को छोड़ दें, आगे चले जाएं थोड़ा सा। और खुदा का कलाम फैलता रहा। और इसके बाद हुआ क्या कि खुदा का कलाम फैलता रहा। और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत बहुत ही बढ़ता गया। और काहिनों की बड़ी गिरोह इस दीन के तख्त में तहत में हो गए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब उन्होंने ये सारी स्ट्रेटजी चेंज की तो उसके बाद वो तादाद बढ़ना शुरू हो गई। हालेलुया। शागिर्दों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई और खुदा का कलाम फैलता गया। इंजील को फैलाना हमारा है, लेकिन एक बंदा एक ही काम से लगा रहेगा तो दूसरा काम रह जाएगा, दूसरा सारे काम ना नहीं चलेंगे तो उधर तक असी कामयाब नहीं हो सकते। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आई है? जो खुशखबरी टीम में ऑलरेडी मौजूद है वो अपना हाथ खड़ा करें। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। अब जो नहीं है मौजूद उनको आपने जाके ये बताना है, ठीक है? अगर आपको रेफरेंस ना मिले तो आप मुझसे ले जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, चंद मिनट सोचें इस बात पर, समझें इस कलाम को और इसको खुदा का फजल समझकर सीखें कि खुदा हमें उबारता है, हमें तरोताज़ा करता है, हमें रिचार्ज करता है, हमें हौसला देता है कि हम आगे को खुदा का काम बेहतर करने वाले हैं। Praise the Lord Jesus. खुदा तेरा शुक्र। आए अपनी आंखों को 2 मिनट के लिए बंद करें, 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और चला में दुआ कीजिए। खुदावंद तो मुझे मेरी पोजीशन दिखा, खुदावंद मैं अपनी जगह पर रहकर काम करना चाहूँ। खुदावंद मुझे जोर दे, खुदावंद मुझे कुव्वत दे, खुदावंद मुझे रूह से भर, खुदावंद मुझे कलाम से भर, खुदावंद मुझे हिकमत से भर, खुदावंद मुझे तनाई से भर, खुदावंद मुझे फाइनेंशियल बरकत दे ताकि मैं किसी ना किसी तरह से इस काम में हिस्सा डाल सकूं। हालेलुया। अगर आप कलाम नहीं सुना सकते, आप दुआ नहीं कर सकते, आप घर जाकर बता नहीं सकते, तो मेरी बहन मेरे भाई आप पैसे से भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को कर सकें, ताकि हम जब खादम वारिस आए तो उसको अच्छा ट्रीट कर सकें। हालेलुया। अगर इसको काम को अपना समझते हैं तो याद रखें अपने काम में पूरी एनर्जी लगती है, अपने काम में वक्त भी लगता है, अपने काम में हम अपने बदन को भी इस्तेमाल करते हैं, अपने काम में हम अपने पैसे को भी इस्तेमाल करते हैं, अपने काम में हम अपने घर को भी इस्तेमाल करते हैं, अपने काम में हम अपने रिश्तेदारों को पीआर भी इस्तेमाल करते हैं। मेरी बहन मेरे भाई आप ये सारे वसाइल अपना सकते हैं और अपना कर खुदा का काम कर सकते हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि इंजील आपके वसीला से फैले तो फिर इस काम को करने के लिए अपनी जगह को पहचाने और उस जगह पर आकर काम करने के लिए तैयार हो जाना। खुदा ने हमें ये बेदारी का पैगाम दिया, मैसेज दिया, ये मेरे और आप दोनों के लिए बराबर का है। भैया नरम सको खुदावंद तेरा शुक्र हो। आज इस डेट को लिखे और आज से जाकर काम करना शुरू करें।
आज से जाकर काम करना शुरू। प्रेज पूरा महीना खुदावन की हजूरी में जाए। डेली 10 मिनट उसको दे। खुदावन ने खुशखबरी को फैलाने के लिए 10 मिनट हजूरी में देता हूँ। 10 मिनट सिर्फ दुआ उसी के लिए करें। हालेलुया। अपनी टाइट हदीये ऑफरिंग के अलावा पैसे निकालें ताकि आप इवेंजलिज्म को सपोर्ट कर सकें। खुद कुछ करें उन पैसों से, खादम को दें जैसे आप बेहतर समझते, जैसे आपको खुदा का रूह उभारता है। घर में दुआ करनी है करें, चर्च में आकर करनी है करें, रोजा रखना है इज्तिमाई तौर पर रखना रखें, अफरादी तौर पर रखना है रखें, लेकिन कुछ करें जरूर। हालेलुया। डेली वर्ड्स भेजें, किसी को कलाम सुना दे 2 मिनट, वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजें, कुछ तो करें। हालेलुया। उसकी एक वर्ड्स रिकॉर्डिंग करने में 2, 4, 5 सेकंड लगते हैं और ये सब कुछ फ्री आज हो रहा है। आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप, आप 50 लोगों को डेली भेज सकते हैं। किसी तरह तो फैलाएं उसके कलाम को, किसी तरह तो उसका काम करें। बहुत से तरीके हैं, मैंने चंद लिखवाए हैं, घर जाकर नोट कर लीजिएगा कितने तरीकों से आप काम कर सकते, और सारे तरीकों को अपनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपकी एक्सपर्टीज है उसको अपनाएं, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं उस तरीके को खुदा के लिए इस्तेमाल करना शुरू। खुदा आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे। कलाम के वसीला से आपकी जिंदगियां तब्दील हो, आपकी रूहानी जिम्मेदारी की तरफ दुआ करना चाहता हूँ। या पाक खुदा इन सारी बहनों के लिए, भाइयों के लिए बरकत चाहता हूँ, अपनी पूरी टीम के लिए बरकत चाहता हूँ, मेरे बंदा खादम के लिए भी बरकत चाहता हूँ। आपने जलाल अपनी कुदरत के इस्तेमाल कर ये आज का कलाम हमारी जिंदगियों में रहे और शोभन पाता है। यीशु मसीह नाम के नाम से आमीन। सब ने आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। आए खुदावंद की हजूरी में एक गीत गाएंगे, उसे कुरान